ویلکم بیک۔ عید کی بہت سی مبارکباد کے ساتھ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ لندن میں رہنے والے پاکستانیوں نے بھرپور طریقے سے عید قربان منائی۔ کئی مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے جن میں سینکڑوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانیوں نے اپنے ہم وطنوں کو عید کی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تمام اہل اسلام کو عید مبارک ہو۔ اللہ پاک سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اوورسیز میں پاکستانی خوش خرم محبت سے پیار سے خوشیاں بانٹتے ہیں، اس طرح اسلامی معاشرے میں لوگ اسی طرح سے پیار سے اور محبت سے خوشیاں بانٹیں۔ یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جہاں کبھی مسلمان ضرورت مند ہوں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور یہ ایک بردرہڈ کا بہت اچھا نتیجہ نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ افریقہ میں بھی کنسنٹریٹ کریں کیونکہ افریقہ زیادہ ضرورت مند ہے اور ان کی ضروریات کو بھی ہمارا پورا کرنا مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے۔ ہماری سیکریفیکیشن اور فیملی گیدرنگ کے لیے ہے۔ میں سب مسلمان بھائیوں کو اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں۔ May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our efforts. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us a beautiful day. I wish all of you, everybody who's listening, everybody who's watching, a very heartfelt Eid Mubarak from all of us here at Ilford Islamic Center in London. Jazakumullah ta'ala. آج خوشی کا موقع ہے اور تمام مسلمانوں کو، تمام مسلمین، تمام مسلم امہ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور آج کے دن میں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، کامیابی دے، اور ان غریب لوگوں کو مت بھولے جن کی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سب مسلمانوں سے میری یہ دعا ہے کہ سب مل کے کچھ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچے جن کا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب فیملی اکٹھے ہو کے مناتے ہیں اور سب مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک ہو، اسپیشلی پاکستانیوں کو۔ سب لوگوں کو عید مبارک۔ اور عید منانے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے یہاں پر کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان سب کے ساتھ جو ہے ظاہر ہے بڑی عید ہے، کھانے کا بھی اچھا اہتمام ہوتا ہے آج کے دن، تو خوب کھائیں پیئیں دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ گلاسگو میں نماز عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا اجتماع سینٹرل مسجد میں ہوا۔ پاکستانی کمیونٹی سمیت دیگر ممالک کے سینکڑوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں فرید انصاری کی رپورٹ۔ گلاسگو میں عید الاضحیٰ کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع گلاسگو سینٹرل مسجد میں ہوا، جہاں پاکستانی اور دیگر ممالک کی مسلمان کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اسلامک سینٹر کے علاوہ ضیاء القرآن، مسجد ابراہیم، جامعہ اسلامیہ مسجد الفرقان، مدرسہ تعلیم الاسلام، مسجد خضرہ، منہاج القرآن اور دیگر مقامات پر تین بار عید کی نماز پڑھی گئی۔ نماز عید کے اجتماعات میں پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے جوش و خروش کے ساتھ دعائیں بھی مانگی گئیں۔ نماز کے بعد کمیونٹی کے لوگ ایک دوسرے میں گھل مل گئے اور بغل گیر ہو کر عید کی مبارکباد دیتے رہے۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ بے شک عید کا مزہ پاکستان میں ہے، لیکن اب یہاں بھی کمیونٹی نے پاکستان جیسا ماحول بنا لیا ہے۔ پاکستان میں سب رہنے والے بہن بھائیوں کو، سب کو، پورے پاکستان کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ میری طرف سے تمام یو کے میں رہنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دل کی گہرائی سے عید مبارک۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مساجد اور اسلامک سینٹرز کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ دنیا بھر کی طرف فرانس میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ فرزندان اسلام نے کثیر تعداد میں نماز عید ادا کی۔ امت مسلمہ، عالم اسلام اور کشمیریوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں پیرس سے شازیب ارشد کی رپورٹ۔ تہوار قوم کی علامت اور پہچان ہوتے ہیں۔ اگرچہ باشعور قومیں اپنے اپنے تہوار اپنے مذہبی اعتبار سے مناتی ہیں، اس سے قوم کی ثقافت اور مذہب کی عکاسی ہوتی ہے۔ اسی طرح پیرس کی مختلف بڑی مساجد میں نماز عید الاضحیٰ کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں مسجد النور درانسی، مسجد قباء ویلر لبیل، گرینڈ مسجد پیرس، ادارہ منہاج القرآن اور مسجد پیریفت شامل ہیں۔ نماز عیدین کا سلسلہ صبح 8 بجے سے شروع ہوا، جو وقفے سے 11 بجے تک مختلف مساجد میں جاری رہا، جس میں لاکھوں فرزندان اسلام نے فریضہ عید ادا کیا۔ عید کی نماز کے بعد علماء کرام نے سنت ابراہیمی کی اہمیت اور فضیلت پر بھی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں سفیر یورپ علامہ حافظ نذیر احمد خان کا کہنا تھا کہ قربانی کی اہمیت اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ذبح عظیم ہے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت و فرما برداری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احکام خدا بندی کی بجا آوری کے لیے بندگی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں انسانی خون کی حرمت پر بہت زور دیا اور اسے بہانہ حرام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج جگہ جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، شام، عراق، فلسطین، کشمیر یا افغانستان اور پاکستان ہوں، انسانی خون کی ارزانی کر دی گئی ہے۔ جس کے بعد خطبہ ادا کیا گیا اور آخر میں بنی نوع انسان، عالم اسلام، کشمیریوں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے
खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज की अदायगी के बाद मुसलमान भाई गिले शिकवे दूर करके बगलगीर हुए और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। दुनिया भर की तरह फ्रांस में भी ईद उल अजहा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा मुनक्किद किए गए, जिसमें उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। से शाह ज़ेवर अर्शद, दुनिया न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान के मारूफ कारी सैयद सदाकत अली के एजाज में इशाइया दिया गया, जिसमें मकामी उलमाए किराम और कम्युनिटी ने शिरकत की। खूबसूरत तकरीब का अहवाल जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा हसीब अरसलान से। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान के मारूफ सितारा इम्तियाज याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली के एजाज में एक इशाइया दिया गया, जिसमें मकामी उलमा समेत कम्युनिटी ने भी शिरकत की। इशाइया की तकरीब में कारी सैयद सदाकत अली ने अपनी आवाज में कुरान पाक की तिलावत से हाजिरीन के दिलों को मुनव्वर किया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सबको मसालिक और फिरकों से बालातर होकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करना होगा। कुरान का इरशाद है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका मत पैदा करो। अब इसको अगर ले लें तो उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं इस आयत की रूह से। क्या हम इकट्ठे हैं? नहीं हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हमें मार पड़ती रहेगी। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को मिटाकर इज्तिमाई तौर पर हम उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाए। इसलिए कि जब दुश्मन वार करता है वो ये नहीं देखता कि तुम सुन्नी हो, तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, क्या हो। वो कहता है कि सब मुसलमान हैं। वो मुसलमान समझ कर वार करता है। जब आपके अंदर यूनिटी होगी तो फिर देखें ना, एक मुट्ठी है, इसको आप अलग अलग उंगली करते तो ताकत खत्म हो जाएगी। ये इकट्ठी होगी तो इसको जेर करना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मत मुस्लिमा को जो है वो इकट्ठा होना चाहिए और डिफरेंसेस खत्म करने चाहिए और वहदत का सबूत देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमें दहशतगर्दी जैसी लानत से बचना होगा और अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा, और कहा कि हर एक मुसलमान इस्लाम का नुमाइंदा है। हर एक मनफी अमल पूरे दीन को बदनाम करता है। इस वक्त जो एक लानत जो है दहशतगर्दी की हमारे ऊपर मुसल्लत है, उससे बचने का एक ही तरीका है कि हमारे अंदर इत्तेहाद हो। हमारे अंदर से ही लोग जो हैं वो ये टेररिज्म जो है वो टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, तो फिर हम लोगों को क्या सबक देंगे? लोग तो वही देखेंगे ना कि अगर एक शख्स जो है वो सुसाइड करता है तो वो समझेंगे कि पूरा रिलीजन, पूरा इस्लाम जो है, पूरा दीन जन इस तरह है। हालांकि एक्सट्रीमिज्म हर रिलीजन के अंदर है, नो मैटर विच रिलीजन यू बिलोंग्स टू। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा रिलीजन खत्म हो गया, मगर चूंकि प्रोपेगेंडा इस तरीके से हो रहा है इस्लाम के खिलाफ कि आपको एक मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मुसलमान, हर मुसलमान, एवरी सिंगल मुस्लिम इज़ द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम को नुमाइंदा है। उसके किसी कौल से, किसी फेल से, किसी उसकी आदत से ये बिल्कुल नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि मुसलमान ऐसे होते हैं। इसलिए कि आपका हर एक नेगेटिव एक्शन जो है वो पूरे दीन को, पूरे इस्लाम को बदनाम करता है। लिहाजा हमें अपनी ज़ाती लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़कर ऑन अ ब्रॉडर बेस हमें सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और इस लानत से छुटकारा हासिल करना चाहिए। कारी सैयद सदाकत अली का कहना था कि उन्होंने कुरान पाक इंटरनेशनल ज़बानों के साथ लिंक अप करना शुरू किया है और कहा कि आगे भी मुख्तलिफ ज़बानों में करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस मैदान में काफ़ी काम किया। इस वक्त तक मेरे 12-13 कुरान पाक जो हैं वो वर्ल्ड मार्केट में हैं। उसमें विदाउट ट्रांसलेशन भी हैं और जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनकी ट्रांसलेशन के साथ लिंकअप किया है। उसके बाद अब हमने इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के साथ लिंकअप करना शुरू किया है। हमने नॉर्वेजियन में किया लिंकअप, हमने इंग्लिश में लिंकअप किया है और उसके बाद फिर हमने इसको जो है वो स्पेनिश के अंदर लिंकअप किया है और उसकी इनॉग्रेशन हमने स्पेन में जाके की है। इसी तरह हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैं उसमें जापानीज़ है, रशियन है, फ्रेंच है, जर्मन है, डच है, जापानीज़ है, इनमें हम कर रहे हैं। तो इससे यकीनन एक मैसेज जो है, जो आफाकी कलाम है, उसका मैसेज लोगों तक पहुँचाने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। इशाइया में मौजूद दीगर उलमा का कहना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत की खिदमत करने वाला दीन इस्लाम है। उलमाए किराम का कहना था कि इस्लाम अमन और भाईचारे का दर्स देता है और तमाम मुसलमानों की भलाई इसी में है कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। हसीब अरसलान, दुनिया न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। वाशिंगटन में मुकीम मुसलमानों ने इस्लामिक सेंटर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। बच्चे भी बड़ों के हमरा ईद पढ़ने पहुंचे।
देखते हैं कौसर जावेद की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के मुसलमानों ने रिवायती जोश व जज्बे के साथ ईद मनाई। वाशिंगटन एरिया में रहने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इस्लामिक सेंटर में नमाज ईद अदा की। मस्जिद का हॉल भर गया, जिसके बाद बाहर इंतजामात करने पड़े। ईद के बाद मुसलमानों की बड़ी तादाद कुर्बानी के लिए घरों को रवाना हो गई। नमाज ईद के मौका पर बयान करते हुए उलमा का कहना था कि इस्लाम अमन व मोहब्बत का दीन है। ईद के मौका पर कुर्बानी से एसार और दूसरों के दुख दर्द में काम आने का दर्स मिलता है। इस मौका पर नमाजियों ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने हमवतनों और कम्युनिटी के अहबाब को मुबारकबाद पेश की। Eid Mubarak to all the Muslim community and everybody in America and across the world. And I would also like for them to remember all of those who are not with us, who were with us last year, people who have lost their life for illness or terrorism or anything. And this Eid gives us a message of sacrifice for each other and taking care of each other. Allah Ta'ala सबको हिदायत दे मुसलमानों को और पाकिस्तान की खैरियत के लिए दुआएं मांगे और यहाँ पे जो लोग हैं उनको अपने लोगों से मोहब्बत और इत्तेफाक की दुआएं करें। मेरी तरफ से आपको और सबको बहुत बड़ी मुबारक हो और हमें इस ईद के मौके के ऊपर जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, अपने अजीज़ो कारब का, अपने नेबर्स का, अब सबका ख्याल रखना चाहिए। और मेरी तरफ से पाकिस्तान में फैमिली को, इधर अमेरिका में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने मुसलमान हैं सबको बहुत बहुत मुबारक। ईद के मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान मेल जोल बढ़ जाता है। कई मकामात पर पाकिस्तानी फैमिलीज पार्टी की सूरत में बैठने का एहतमाम भी करती हैं। बार्सिलोना में 11 सितंबर को कातलोनिया का कौमी दिन मनाया गया, जिसको कातलान अवाम यौम अज़्म के तौर पर मनाते हैं। जबकि कातलोनिया के कौमी दिन का ताल्लुक किसी खुशी और मसरत के वाक़े से नहीं, बल्कि इस दिन उनकी आज़ादियां खत्म कर दी गई थीं। देखते हैं कमर फारूक की रिपोर्ट। 11 सितंबर कातालोनिया का कौमी दिन है, जिसको ये लोग यौम अज़्म के तौर पर मनाते हैं। दुनिया भर की कौमें अपना कौमी दिन किसी खुशी के वाक़े की याद में मनाती हैं, लेकिन कातालोनिया के कौमी दिन का ताल्लुक किसी खुशी और मुसर्रत के वाक़े से नहीं, बल्कि इस दिन इनकी आज़ादियाँ खत्म कर दी गई थीं, जिसको ये यौम अज़्म के तौर पर याद रखते हैं। So today is an important day for the Catalans. It's our national day, and we just try to congratulate ourselves of just working on this roadmap that could make us to have a normal and a proper state. We know that this is not something easy, that we need everybody, that we need the parliament, we need the government, but we also need the citizens, and that's what we are just trying to do, doing things well, trying to put democracy on the top, and of course trying to persuade everybody that having a new state is an important thing for us. जबकि अपने घरों के बाहर कातालोनिया का परचम लहराते हैं, दुकानों और बुक स्टॉल्स पर कातालोनिया के परचम, बैजेस और स्टिकर्स सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं। तमाम अखबारात कौमी दिन के हवाले से लीड स्टोरीज लगाती हैं। सदर हाउस और बार्सिलोना बल्दिया पर कातालोनिया का परचम लहराया जाता है। स्पेन के सूबा कातालोनिया के सदर और मेयर ने आजादी के हीरो राफेल दे कासानोवा की यादगार पर फूल चढ़ाए और गार्ड्स की जानिब से सलामी भी पेश की गई। इस मौके पर कातालोनिया का कौमी तराना भी बजाया गया। जबकि दीगर सियासी जमातों के सरबराहान, नुमाइंदों और समाजी तंजीमों ने राफेल दे कासानोवा की यादगार पर फूल चढ़ाए और सलामी पेश की। लाखों की तादाद में लोगों ने तकरीब में शिरकत की और हमें आज़ादी चाहिए के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए शाहराह पर मार्च किया। कातालोनिया में बसने वाली दीगर कम्युनिटीज के लोगों ने भी इस आज़ादी मार्च में कातलान अवाम का साथ देने के लिए शिरकत की। कातलान कौम के साथ साथ पाकिस्तान का झंडा उठाए लोगों ने भी शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। Avui haig de dir d'entrada bona diada a tots els pakistanesos catalans i que sàpiguen, ja ho saben, però que avui és un dia important per tots, no només pels que hem nascut aquí, sinó pels que heu viscut i ara hi viviu i heu vingut també aquí. Per tant, celebro i demano que passeu una molt bona diada nacional de Catalunya i, per acabar, visca Catalunya ई पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पेन की मरकजी हुकूमत की जानिब से पाबंदियों के बावजूद कातलान कौम ने इस दिन को यौम अज़्म के तौर पर याद रखा हुआ है। गुज़श्ता 26 साल से हॉलैंड में एम्बेसडर क्रिकेट कप खेला जा रहा है। पाकिस्तान कम्युनिटी 11 और डच क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान मुकाबला होता है। इस साल पाकिस्तान कम्युनिटी 11 को शिकस्त हुई और डच क्रिकेट बोर्ड 11 मैच 6 विकेटों से जीत लिया। मोहम्मद मंसूर आलम की रिपोर्ट।
26वें पाकिस्तान एम्बेसडर दोस्ती क्रिकेट मैच का इनेकाद हॉलैंड के शहर दी हेग में किया गया। ये मैच पाकिस्तान कम्युनिटी 11 और डच क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान खेला गया। डच क्रिकेट टीम ने इस मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मैच के मुंतजमीन और खिलाड़ियों ने इस मौके पर दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। हमने एट द एंड बैटिंग थोड़ी अच्छी नहीं की है, उसकी वजह से हमने थोड़े कम रन किए थे, थोड़ी गेंद टर्न हो रही थी उनकी दफा, मगर फिर जब सेकंड इनिंग्स आई है तो वो पीटर बोर्न जो है वो एक्सेप्शनली अच्छा खेला है। वो एक्स फैक्टर था इस पूरे मैच में, उसने बिल्कुल डिफरेंट क्लास अपनी दिखाई है कि वो गुड प्लेयर है, इसलिए वो नेशनल टीम का कप्तान भी है। We played well, yeah, so very happy because normally the Pakistani team has been winning this this match every year for quite a while, so it's nice for us to win this time. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारी जो प्लानिंग है ना कि हॉलैंड के हर पार्ट से एक टीम को इनवाइट किया जाए ताकि जितने भी पाकिस्तानी हॉलैंड में है सबको इकट्ठा किया जाए और जितनी ज़्यादा टीमें आएंगी इंशाल्लाह उतनी ज़्यादा ही पब्लिक इधर होगी। ये हमारी प्लानिंग है, इंशाल्लाह वी गोना डू इट। This event was started by Mr. Shamsi a long time ago. I think now we're playing about 35 years the same event, and as I said, it is so important to bring in the Pakistan community, and we are very grateful for the participation of everyone and the help, and the fact that the new ambassador was here today was very special. मैच के इख्तिताम पर हॉलैंड में तैनात पाकिस्तानी सफीर इफ़त इमरान गिरदेजी ने दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए और इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा होने वाले मैचों में क्रिकेट के शायकीन की ज्यादा तादाद होगी। Hope to see you next time, but in a larger gathering next time maybe. We will try to work and publicize the event so that most of the people, or the community people from the Dutch side and the Pakistan side would come to the event. जिन मुल्कों में खेलों के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ बच्चे और बड़े ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और तवाना होते हैं। इस किस्म के टूर्नामेंट पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मौका है ताकि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाकर डच कॉमिटी क्रिकेट टीम में शामिल हों। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद मंसूर आलम, दुनिया न्यूज़, दी हेग, हॉलैंड। इसके साथ ही यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपको दीगर खबरों के साथ ज्वाइन करेंगे मेन स्टूडियो से। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।